তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি রূপেশ যাদবের সাথে হিন্দ সংবাদ সহ সম্পাদক সত্যনারায়ণ সিংয়ের বিশেষ সাক্ষাৎকার। কেন্দ্র সরকার দ্বারা সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভাতে আনা কৃষক বিলকে তিনি কৃষক বিরোধী আখ্যা দেন। রূপেশ যাদব বলেন যে মহাজনদের দ্বারা যাতে খাদ্যশস্য মজুত না করা হয় তার জন্য আগের সরকারের বিস্তৃত আইন প্রণয়ন করে ও ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ান গঠন করা হয়, কিন্তু এই বিলটি পাশ হওয়ার পর এবার মহাজনরা খাদ্যশস্য মজুত করবেন, যার ফলে জিনিসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়বে। তিনি জানান যে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ থেকে রাস্তা সর্বত্র বিলের বিরোধিতা করছে। তিনি এটি মানতে চাননি যে করোনার কারণে রোজগার কম হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কেন্দ্র সরকারের ভুল আর্থিক নীতির কারণে রোজগার কমেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে কেন্দ্র সরকার রেল, কোল ইন্ডিয়ার মতো জাতীয় সম্পত্তিকে বেসরকারীকরণ করছে, যার ফলে মানুষ কাজ হারাচ্ছে। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে 2 কোটি করে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। 2 কোটি চাকরি দূরস্থ মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাংকে একত্রিত করার ফলে বহু মানুষ চাকরি হারাচ্ছে। তিনি বলেন যে বর্তমান কেন্দ্র সরকারকে যুব সমাজকে শোষণ করছে, যার উত্তর এই যুব সমাজ দেবে। তিনি বিজেপির ওই অভিযোগকে খারিজ করেন যে মমতা ব্যানার্জির সরকার হিন্দ ভাষীদের জন্য কিছু করেননি। রূপেশ যাদব বলেন যে মমতা সরকার কোনো বিষয়ে সম্প্রদায় বা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য কাজ করেন না। মমতা সরকার এই রাজ্যে বসবাসকারী সকলের সার্বিক বিকাশের প্রতি মনোনিবেশ করে। তিনি বিজেপির ওপর সমাজে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ করেন। তিনি বলেন যে যদি টিএমসিতে হিন্দ ভাষীদের সম্মান না থাকতো তাহলে তিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি হতেন না বা জিতেন্দ্র তেওয়ারি মেয়র হতেন না। পাণ্ডবেশ্বর সহ এই কয়লা অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে ধস নামছে তার জন্য তিনি ইসরায়েল ও আগের সরকারকে দায়ী করেন। তার অভিযোগ যে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে কয়লা উত্তোলন করার পর যে বালি ভরাটের কাজ করা উচিত তা করা হয় না বলে এই ব্যাপক হারে ধস নামছে ও হরিশপুরের মতো ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন যে এর জন্য কেন্দ্র সরকার দায়ী, কারণ তারা নিজের লাভ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। তাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। রূপেশ যাদব বলেন যে এই অঞ্চলে ওসিপি বানানোর কারণে অঞ্চলে ধস নামছে। রূপেশ যাদব বলেন মিডিয়ায় একটি অংশ বিজেপির তাবেদারি করছে, যার আসল কারণ বিষয়গুলি হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তার অভিযোগ যে মিডিয়া এখন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের জায়গায় বিজেপির চতুর্থ স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। হরিশপুর গ্রামের মানুষের পুনর্বাসনের বিষয়ে তিনি তৎকালীন এডিডি এর চেয়ারম্যানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন যে এডিডি এর চেয়ারম্যান নিজের স্বার্থের জন্য মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেন। অন্যদিকে টিএমসি সরকার গঠনের পর সোনপুর বাজারিক প্রজেক্টের পুনর্বাসনের বিষয়টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ টিএমসি সরকার মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। आपको जो किसान विरोधी बिल जो पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा से, जो बिल बनाया गया है, कानून बनाया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? किस तरह से विरोध कर रहे हैं इसका? अभी जो बिल पास हुआ है ये बिल टोटली किसान विरोधी बिल है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसानों की हित को देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसानों के नहीं पूंजीपतियों का हित को देखा गया है। जिस तरह से हम लोग देखा करते थे पुराने ज़माने में, किसान फसल उगाते थे और फसल तैयार होने के बाद साहूकार अपने गोडाउन में भर लिया करते थे। इस किसान बिल में एक जगह है जहाँ पर अनाज का स्टोरेज का लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया गया है और इस लिमिटेशन को ख़त्म करने से फिर किसान कंगाली की तरफ जाएगा, देश भुखमरी की तरफ जाएगा। इसी स्टोरेज को ख़त्म करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने कंट्रोल का निर्माण किया था और पीडीएस सिस्टम का निर्माण किया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया था और ये सारी चीज़ें निर्माण करके अनाज पर, अन्न पर एक कंट्रोल लाया था, जिससे साधारण लोगों की सुविधा हुई थी। आज फिर किसानों का उत्पादित अनाज को बड़े बड़े उद्योगपतियों और साहूकारों के गोडाउन में भर दिया जाएगा, जिससे देश भूखमरी की तरफ जाएगा। तो इसका किस तरह से आप लोग तृणमूल कांग्रेस तरफ से विरोध किया जाएगा इसका? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस दिन से पेश हुआ और हमारे नेता स्टडी करने के बाद इसके खिलाफ में हम लोगों को रास्ते पर उतर करके विरोध करने को कहा गया। हम लोग रास्ते पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। हमारे संसद भवन में विरोध कर रहे हैं, संसद के सामने विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध पुरजोर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और आगामी दिन चलता रहेगा। आप तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपका युवा से जुड़ा आपका कार्य होता है। तो अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है आपका कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया जा रहा है, जिसके लेकर आपके मुख्यमंत्री भी आंदोलन कर रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कोरोना काल के दौरान जिस तरह से युवाओं का रोजगार, केवल कोरोना काल के वजह से युवाओं का रोजगार नहीं छीना है, केवल कोरोना काल से युवाओं का रोजगार नहीं छीना है, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवाओं का रोजगार छीना गया है।
केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से युवाओं का रोजगार छीना गया है। केंद्र सरकार जिस तरह से हमारे देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे रही है, इसके वजह से रोजगार छीना जा रहा है। जिस तरह से हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथों में दे करके युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। रेल हो, सेल हो, भेल हो, हर जगह यहाँ पर जितने रिक्त पदे थे सबको बंद किया जा रहा है, सबको समाप्त कर दिया गया है और रोजगार का कोई नया जगह नहीं तैयार किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि जब हम देश हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने के बदले मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर 5 बैंकों का मर्ज किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं बैंकों को 5 बैंक 4 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर एक बैंक में 50 आदमी काम करते हैं तो 5 बैंक में 250 आदमी काम करेंगे, और जब 5 बैंकों को मिला करके एक बैंक बना दिया जाएगा तो वही 50 आदमी काम करेंगे। अर्थात 200 लोगों का रोजगार केंद्र सरकार, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, 200 लोगों का रोजगार केंद्र सरकार खत्म कर दिया। जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वहां रोजगार को इस सरकार के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। अर्थात ये युवाओं का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली सरकार है और युवा इस सरकार के खिलाफ गरजेगी, अपना आंदोलन तैयार करेगा, आंदोलन तैयार करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना। आप एक हिंदी भाषी समाज से ये करते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे भाजपा के द्वारा प्रचार किया जाता है कि हिंदी भाषी के लिए ममता ने कुछ नहीं किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा दल किसी भाषी को सामने रख करके, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उर्दू भाषी हो, हमारा दल पश्चिम बंगाल में बसवास करने वाले हर नागरिक को अपना नागरिक समझती है और भाजपा का काम है विभेद करना। भाजपा का काम है विभेद करना, कभी हिंदू मुसलमान, कभी बंगाली बिहारी, कभी ऊंच नीच अगड़ा पिछड़ा। भाजपा विभेद करके ही राजनीति करती है और हमारा दल विभेद करके राजनीति नहीं। हमारे दल के लिए हर भाषा के लोग एक समान हैं और हर कोई को सम्मान मिलता है। हम अपने जिले में ही देखेंगे कि से अगर हिंदी भाषियों का अपमान होता तो मैं थोड़ी जिला का सभापति यूथ का होता, जितेंद्र तिवारी थोड़ी जिला के सभापति होते, मेयर होते, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको भाषा और जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर ही हमारा दल काम करती है। एक और आपसे सवाल था, अभी कुछ दिन से पंडेसर विधानसभा इलाके में जहाँ तहाँ हमारा धस की इलाका हो रहा है, अधस हो रहा है, जिसमें हिंदी भाषी लोग कहीं घरों की ज़्यादा बर्बादी हो रही है, इस पे आप एसीएल को कुछ जवाब देना चाहेंगे कि एसीएल किस तरह से आगे कार्य करे? देखिए, ये हिंदी भाषियों का ही घर धस के प्रबल में जा रहा है, ऐसा नहीं है। हरिशपुर गांव पूरा धस के प्रबल में, जानकारी होगा। पंडेसर विधानसभा के मैंने पूछा। पंडेसर विधानसभा नहीं है, हमारा ये कोयला अंचल पूरा, हमारा कोयला अंचल पूरा पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती जो भी मैनेजमेंट था वो ठीक तरह से काम नहीं किया है। इसी की वजह से आज धस के तरफ जा रहा है। अगर ठीक तरह से काम किया होता तो ये धसान नहीं होती। अगर ईसीएल अपना ठीक तरह से काम करती तो ये धसान प्रॉपर रूप से बालू भराई करती, जो नियम कानून था उस कायदे कानून के तहत अगर कोयला काटती तो इस तरह का धसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह जो धसान हो रही है, और इस धसान में सबसे ज़्यादा ये धसान करने का मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार आज जिस तरह से देश की जनता का उनको परवाह नहीं है। वो एक अपना आमदनी खोजते हैं, कहाँ से लाभ होगा, और इस लाभ को करने के लिए जो हम लोगों का नीति नियम और कानून से कोयला खदान चला करती थी, उस कोयला खदान को दरकिनार करके वो ओसीपी के तरफ ज़्यादा जोर दिए हुए है। उच्च तकनीक को नहीं, अपने उच्च तकनीक को इस्तेमाल में नहीं ला करके ओसीपी की तरफ जोड़ दिए है। ओसीपी से अगर कोई घर बर्बाद होता है तो होता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाभ होना चाहिए और इससे गरीब अगर मरता है तो मरता रहे। आप देख रहे होंगे कि आप ही के मीडिया के कुछ अंश टीवी पर हर समय
सुशांत सिंह को दिखाता है। सुशांत सिंह के सुसाइड से, हत्या से हम लोगों को भी दुख है, लेकिन ये ठीक उसी तरह से कहावत होगी। आज किसान बिल पास हुआ है, आज किसान बिल पास हुआ है। मैं एक बताऊं कि किसान मरता है तो मरे, मजदूर मरता है तो मरे, कोई सुशांत सिंह थोड़े ना है। अच्छा, आगे आपसे एक बात पूछना था। खेत बर्बाद होती है तो हो, खेत बर्बाद होती है तो हो, कंगना का बंगला थोड़ी ना है। आज सरकार और सरकार के कुछ मीडिया के अंश जो देश की जरूरी समस्या है उनको सामने नहीं ला रही है। आज मीडिया के मीडिया देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था। मीडिया का एक पार्ट आपका भारतीय जनता पार्टी का चौथा स्तंभ बना हुआ है। एक बात और आपसे पूछना था, हरीशपुर में जो आप अभी आपने जिक्र किया, हरीशपुर की जब घटना हुई थी, धसान की जब स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों कैमरा ने देखा था कि उस जगह पे अगर हरीशपुर वासियों के साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो आप ही थे। रुपेश यादव भी वहाँ सबसे पहले गए थे। आपके जाने के बाद वहाँ पे सभी नेता पहुँचे, मंत्री भी आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया आगे पी का। तो क्या आपको आंदोलन अभी और आगे चल रहा है इसको लेके? देखिए, हमारी सरकार काम कर रही है, हरीशपुर के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी है। वहाँ 10 प्रभावित लोगों का जो मुआवजा है उस तरफ काम किया जा रहा है। ये 10 प्रभावित जो हरीशपुर है, आप देख रहे होंगे, ये हरीशपुर गांव का हमारे सरकार आने से पहले ही इसके पुनर्वासन की योजना बनी थी। जब कोल इंडिया ICL कोई जगह से कोयला काटती है तो उसके पुनर्वासन की योजना बनाती है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अपना लाभ देखते हुए पुनर्वासन का काम तब के ADDA चेयरमैन के हाथों में दिया गया था। जो ADDA के चेयरमैन हमारे इलाके के वामपंथी के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने हरीशपुर गांव का कोई चिंता नहीं किया और आज तक हरीशपुर गांव का पुनर्वासन नहीं हो पाया। ठीक इसके बदले देखिए, आपका सोनपुर बाजारी गांव जो है, हमारे सरकार के आने के बाद सोनपुर का प्रोजेक्ट हुआ है और सोनपुर गांव का पुनर्वासन हुआ है और पुनर्वासन बड़ी अच्छे ढंग से होकर के सोनपुर ग्राम के वासियों का अपना जगह, मुआवजा सब कुछ मिल चुका है। ये हमारी माँ माटी मानू की सरकार आने के बाद हुआ है। लेकिन वामपंथी CPM केवल अपना फायदा देखते थे और इसी फायदा को देखने के चलते आज हरीशपुर गांव का ये अवस्था है। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है कि इसे हरीशपुर गांव का जो पुनर्वासन का काम है वो जल्द से जल्द निपटाएगी और इस ओर काम भी चल रहा है।